Hello everyone, this is Komal from Speak Plus. If you're facing any problem regarding the Cambridge 17 Test 1, then watch this video till end because in this video I will cover second reading passage and the question type would be matching information. Before solving the questions, let's see what is the strategy which I'm going to follow to solve this question. My first step is read the questions. It's very important to read the questions before reading the passage. So read the question very well and then try to underline the important keywords. Important keywords are very important because it helps to locate the statement. So underline the important keywords and then read the paragraph. As you may know that there would be many paragraphs from A to H or A to G. So you have to read one by one a paragraph and then you need to eliminate wrong answers. If you don't find any correct answer, then try to eliminate the wrong answer. But if you find the correct answer, then select that. So these are very simple steps. Try to follow these steps. Let's see how in this video. In this video, I'm going to start from the question number 14 because I have covered questions from 1 to 13 in my previous video. If you want to check out that, you can click on the I button or hit the link through description box. Okay, before starting the questions, let's read the instructions carefully. You may use any letter more than once. This is a very important line. This means information can be found in one paragraph. For example, if I got 14 answer in my C paragraph, then 17 statement could also be found in the C paragraph. So two questions may have the similar answer. A mention of negative attitudes towards the stadium building projects. फर्स्ट स्टेटमेंट है कि नेगेटिव एटीट्यूड है किसके रिगार्डिंग स्टेडियम बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स कि जो प्रोजेक्ट स्टेडियम बिल्डिंग के रिगार्डिंग है उसके लिए कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो पैराग्राफ में होगी. सो वी हैव टू चेक आउट कि कौन से पैराग्राफ में कोई नेगेटिव एटीट्यूड शो किया गया है किसके रिगार्डिंग स्टेडियम बिल्डिंग प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग. ओके, नेक्स्ट इज फिगर्स डेमोन्स्ट्रेटिंग द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ अ सर्टेन स्टेडियम. किसी एक या किसी दो कोई एक सर्टेन स्टेडियम है जिसके रिगार्डिंग हमें फिगर्स दी गई है और वो फिगर किसके रिगार्डिंग है एनवायरमेंटल बेनिफिट. सो इसमें हम तीन जो है वो कीवर्ड मैंने उठाए हैं, फिगर्स, एनवायरमेंटल बेनिफिट एंड सर्टेन स्टेडियम्स. 16 एग्जांपल्स of wide range facilities available at some new stadiums. अब हमें किसी पैराग्राफ में एग्जांपल्स गिवन है लेकिन वो किसके रिगार्डिंग है कि जो न्यू स्टेडियम है वहां पे कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है हमें वो चेकआउट करना है. एंड लास्ट, रेफरेंस टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्टेडियम्स बिल्ट ड्यूरिंग अ सर्टेन इरा. कोई एक सर्टेन इरा मतलब कोई सर्टेन टाइम पीरियड पे जो स्टेडियम बना है उसके रिगार्डिंग कुछ डिसएडवांटेजेस किसी पैराग्राफ में दी गई है जो कि हमें चेकआउट करनी है. सो फॉर 17 आल्सो आई हैव अंडरलाइन 3 कीवर्ड्स, डिसएडवांटेजेस, स्टेडियम्स एंड सर्टेन इरा. ओके, so these are my important keywords. Let's move ahead and try to find the information. Stadiums past, present and future. So all paragraph में stadium की information होगी because this is the heading. Let's read the first paragraph. Stadiums are among the oldest form of urban architecture. Vast stadiums where the public could watch sporting events were at the center of the western city life as far back as the ancient Greek and Roman empires, well before the construction of great medieval cathedrals and grand 19th and 20th century railway stations which dominated the urban skylines in later eras. Well, इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमें सिर्फ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी गई है स्टेडियम के रिगार्डिंग कि पहले जो स्टेडियम थे उनकी जो हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट हुई. प्लेस ऑफ वर्शिप से भी पहले जो है वो स्टेडियम थे, वो सिटी का सेंटर थे, ये स्पोर्टिंग इवेंट के लिए यूज होते थे और जो 19 एंड 20th सेंचुरी है वहां पे इन स्टेडियम्स ने जो अर्बन लाइफस्टाइल है उसको डोमिनेट कर लिया था. सो दिस इज जस्ट अ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. ओके, लेट्स मूव अहेड. टुडे हाउएवर, अब जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है उन्होंने जो हिस्ट्री बताई है उसका कंपैरिजन आज से होने लगा है. आज क्या हो रहा है, स्टेडियम्स आर रिगार्डेड विद द ग्रोइंग स्केप्टिज्म. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैन सोलर अबव $1 billion. स्टेडियम्स फिनिश्ड फॉर major events such as the Olympic Games or FIFA World War have notably fallen into disuse and disrepair. अब सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने बोला
कि अब का जो स्टेडियम है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है, और जो स्टेडियम सिर्फ ओलंपिक गेम्स के लिए थे या फिर विवा वर्ल्ड कप के लिए थे, अब उनका जो यूज है सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं हो रहा, और भी चीजों के लिए हो रहा है। सो फर्स्ट पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन थी, सेकंड में थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट हो गई है। जो टुडे के स्टेडियम है दैट इज कंपेयर्ड विद द ओल्ड वन। Okay, let's read ahead. But this need not be the cause. History shows that the stadium can drive urban development and adapt to the culture of every age. Even today, architects and planners are finding the new ways to adopt the monofunctional sports arenas which become emblematic of modernization during the 20th century. Now, अब क्या हो गया है, ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ जो था वही कॉज था। जो हिस्ट्री ने हमें ये बताया है कि जो स्टेडियम है वो शुरू से ही जो कल्चर है किसी पर्टिकुलर एज का उसको उसने अडॉप्ट किया है। इवन टुडे जो है आर्किटेक्चर और प्लानर ये प्लान करते रहते हैं कि हम कैसे न्यू वेज को लेके आए ताकि जो मॉडर्नाइजेशन सिंबल है वो ये स्टेडियम बन सके। ओके, लेट्स रीड दिस अगेन। मुझे ये पता करना था नेगेटिव एटीट्यूड है क्या स्टेडियम बिल्डिंग प्रोजेक्ट का या फिर फिगर्स तो डेफिनेटली मुझे कोई इसमें फिगर तो नहीं मिली, तो 15 जो है वो तो क्रॉस आउट है, इसका आंसर 15 का नहीं है। एग्जाम्पल्स भी हमें कोई नहीं मिली, न्यू स्टेडियम की बात नहीं हुई, एंड रेफर्स टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्टेन ईरा, इसकी भी बात नहीं हुई। डेफिनेटली नेगेटिव एटीट्यूड जरूर हमें देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि इस पैराग्राफ में उन्होंने टोटली नेगेटिव एटीट्यूड बताया, और ये जो ओलंपिक गेम्स और वर्ल्ड कप के लिए स्पोर्ट्स बन रहे हैं, लेकिन इसका जो यूज है डिसयूज हो रहा है और डिसरिपेयर हो रहा है। सो दिस इज टोटली अ नेगेटिव एटीट्यूड। So definitely 14 का जो आंसर है that is A. इसका A आंसर आएगा, that is number 14. Now because हमें 14 का आंसर मिल गया, तो we are not going to look at the 14 number for the paragraphs. हम अब हमारे पास questions है 15, 16 and 17 solve करने को। 14 का आंसर we have found. So let's read the paragraph. The amphitheater of Arras in the southwestern France with the capacity of 25,000 spectators is perhaps the best example of just how versatile stadiums can be. Now इसमें तो एक फिगर भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और एग्जाम्पल्स की भी बात स्टार्ट हो गई है। सो मे बी कि 15 और 16 का आंसर हो। लेट्स सी। Built by the Romans in the 90 AD, it becomes a fortress with the 4 towers. After the 50th century was then transformed into the village containing the 200 houses. With the growing interest in the conservation during the 19th century, it was converted back into the era of staging. Okay, इस पैराग्राफ में उन्होंने हमें ये बताया है कि जो थिएटर्स थे जिनकी कैपेसिटी 25,000 स्पेक्टेटर थी, वो एक अच्छी एग्जाम्पल है। रोमन्स 98 में वो बने थे, और उसमें क्या क्या था, और उसका जो यूज है, जो ये वाले थिएटर से उसका यूज कहाँ पे होता था, पब्लिक स्पेक्चर्स, उसका जो पब्लिक के लिए यूज होता था। तो हमें ये फिगर तो उन्होंने दी हुई है, लेकिन एनवायरमेंटल बेनिफिट की कोई बात नहीं की गई, ठीक है। सो 15 तो अभी तक हमें नहीं मिला। लेट्स रीड अनदर एग्जाम्पल इज imposing the arena of Verona in the northern Italy with space for 30,000 spectators, which was built 60 years before the Arras. ओके, यहाँ पे भी उन्होंने फिगर्स इज ऑल्सो गिवन, लेकिन ये फिगर हमें कोई न्यू स्टेडियम की फैसिलिटीज के बारे में नहीं बता रहे। दे आर जस्ट कंपेयरिंग कि 60 साल पहले क्या होता था, 40 ईयर पहले क्या होता था, 90 रोमन एडी उसमें क्या इंफॉर्मेशन थी। तो 15 का आंसर भी नहीं है क्योंकि फिगर्स है, लेकिन वो एनवायरमेंटल बेनिफिट नहीं है। 16 का आंसर भी नहीं है क्योंकि एग्जाम्पल तो है, लेकिन न्यू स्टेडियम की बात नहीं की गई। एंड 17 तो टोटली डिफरेंट है, डिसएडवांटेजेस और सर्टेन ईरा, दैट इज नॉट फाउंड हियर। सो डेफिनेटली बी में तो अभी तक हमें कोई भी आंसर नहीं मिला। लेट्स रीड अहेड। The area in the center of the Italian town Lucca, known as Piazza del Amphitheatro, is yet another impressive example of an amphitheater becoming absorbed into the fabric of city. The site evolved in the similar way to Arras and was progressively filled with the building of Middle Ages until the 19th century, used as the houses, assault, a period, but rather than इसको भी उन्होंने बी पैराग्राफ को ही कंटिन्यू किया है। जो हमारे पास एम्पली थिएटर थे उनकी 3 एग्जाम्पल लिए, 2 एग्जाम्पल उन्होंने बी पैराग्राफ में लिए और सी में भी इन्होंने इसी को कंटिन्यू किया है। इसकी जो एग्जाम्पल है एम्पली थिएटर, इसी को एक्सप्लेन किया है कि पहले क्या होता था, ये भरे होते थे और 19th सेंचुरी में फिर इनको हाउसेस में कन्वर्ट कर दिया गया
और आगे क्या मार्केट स्क्वायर बन गया और क्या है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है। कोई इन्वायरमेंटल बेनिफिट की बात नहीं की गई एंड न्यू स्टेडियम की भी कोई बात नहीं की गई. नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द डिसएडवांटेजेस. सो लेट्स रीड अहेड. There are many similarities between modern stadium and ancient amphitheaters intended for the games. अब उन्होंने बोला कि बहुत similarities है जो modern stadiums है और जो पहले हमने ancient amphitheaters पढ़े उनकी जो है जो games के लिए use होते थे इन दोनों में बहुत similarity है. But some of the flexibility was lost at the beginning of 20th century. But 20th century में कुछ flexibility lost हो गई as the stadium were developed using the new products such as steel, reinforced concrete, made use of the bright light for the night time matches. अब क्या हो गया 20th century में ये वाले जो प्रोडक्ट है यूज तो किए गए लेकिन फिर भी जो है फ्लेक्सिबिलिटी वो लॉस्ट हो गई. ओके. Many such stadiums are situated in suburb areas designed for sporting use only and surrounded by parking lots. These factors mean that they may not be accessible to the general public, require more energy to run and contribute to urban heat. Now this is the biggest disadvantage. These stadiums are used only for sporting purpose. Now general public are not allowed to do any other things like exercise or walk or run. These things cannot be done into this stadiums. So definitely this is the disadvantages because they are talking about the suburban area means कि cities पहले ही डेवलप्ड है, वहाँ पे ओपन ग्राउंड इतने नहीं होते और स्पोर्टिंग यूज के लिए अगर आपने स्पेस ले ली है तो जो अदर एक्टिविटी है फ्रेश एयर है ब्रीथ करने के लिए अदर थिंग्स जो है वो अब पब्लिक उसको कहाँ से अडेप्ट करेगी. सो डेफिनेटली दिस इज द डिसएडवांटेज. वंस मोर रीड द स्टेटमेंट नंबर 17 रेफरेंस टू द डिसएडवांटेजेस. यस ये डिसएडवांटेजेस है ऑफ द स्टेडियम बिल्ट ड्यूरिंग अ सर्टेन इरा. इन्होंने सर्टेन इरा की भी बात की गई है दैट इज द 20th सेंचुरी. जो है 20th सेंचुरी की बिगनिंग जब हुई है तो फ्लेक्सिबिलिटी लॉस्ट हो गई. फ्लेक्सिबिलिटी क्या थी? फ्लेक्सिबिलिटी ये थी कि जो स्टेडियम है वो बहुत सारे पर्पस के लिए यूज होता था. अगर कोई गेम है कोई इवेंट है तो वो उसके लिए यूज होता था. अगर कोई इवेंट नहीं है तो अदर एक्टिविटीज के लिए भी स्टेडियम यूज होता था. लेकिन इन 20th सेंचुरी फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस होगी. सो डेफिनेटली 17 का जो आंसर है दैट इज आंसर डी. Now because we have found our two answers 14 and 17 मैंने इसको क्रॉस आउट कर दिया. We are not going to check this one. Let's read paragraph E to find 15 और 16 आंसर. 15 के लिए I need figures और 16 के लिए हमें चाहिए examples. Let's see E में क्या है. But many of today's most innovative architects see scope for the stadiums to help improve the city. अब हमने लास्ट पैराग्राफ में ये पढ़ा था कि जो स्टेडियम है उनमें अब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही, लेकिन ई पैराग्राफ में उन्होंने क्या बोला है कि काफी इनोवेटिव जो आइडिया है वो भी है टू इम्प्रूव द सिटी. अमंग द करंट स्ट्रेटजीज टू सीम टू हैविंग अ पर्टिकुलर सक्सेस द स्टेडियम एज एन अर्बन हब एंड एज अ पावर प्लांट. ये दो जो स्टेडियम है ये पर्टिकुलरली हमें सक्सेस दे रहे हैं. स्पोर्ट्स इवेंट भी यहाँ पे हो रहा है और जो सिटी की अदर रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो रही है. लेट्स सी हाउ. There's a growing trend for stadiums to be equipped with the public spaces and services that serve a function beyond the sports, such as the hotels, retail outlets, conference centers, restaurants, bars, children's playgrounds, green spaces. Now, अगर 16 को हम दोबारा पढ़े तो उन्होंने बोला है एग्जाम्पल्स ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल एट सम न्यू स्टेडियम. न्यू स्टेडियम में हमें रेंज ऑफ फैसिलिटीज की एग्जाम्पल जो है वो कौन से पैराग्राफ में गिवन. ई पैराग्राफ में जब मैंने ये दो पैराग्राफ ही पढ़े तो मेरे को आंसर मिल गया बिकॉज द एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमारे पास अर्बन हब एज अ पावर प्लांट, दीज आर टू एग्जाम्पल्स. और यहाँ पे these are so many facilities defined such as hotels, retail outlet, conference centers, restaurants, bar. बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे यूज हुई हैं. So definitely answer is E. जो 16 का आंसर. Now one question is left. Figures demonstrating the environment benefits of a certain stadium. किसी certain stadium में जो figures दी गई हैं उससे हमें ये पता चलता है कि वो environment benefits के related है.
The phenomena of stadium as a power stations is arisen from the idea that energy problems can be overcome by the interconnected buildings by means of smart grid, which is an electricity supply network that uses a digital communication technology to detect and to react to local changes in usage without significant energy losses. Stadiums areas are ideal for these purposes because their canopies have a large surface area for fitting photovoltaic panels and range high enough to make use of micro wind turbines. अब इस पैराग्राफ में उन्होंने नेटवर्क की जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की वो बात की है। उन्होंने बोला है कि ये जो स्टेडियम है, जो पावर स्टेशंस हैं, उनका जो फिनोमिना क्या था कि वो इलेक्ट्रिसिटी पे जो है डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते थे ताकि वो लोकल जो चेंजेस है उसको यूज कर सके और इसके लिए सिग्निफिकेंट एनर्जी लॉस जो था वो भी नहीं होता था। विदाउट बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगती थी। सो डेफिनेटली दिस इज द एडवांटेज। और ये किसकी बात कर रहे हैं? इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स की। पर क्या हमें फिगर्स गिवन है? लेट्स रीड अहेड। Freiburg merged solar system in Germany is the first of the new wave of stadiums as a power plants, which also includes the Amsterdam Arena and Kahoing Stadium, the later inaugurated in 2019, has 844 photovoltaic panels producing up to 1.14 GWh of electricity annually. Now definitely figures are given कि वो annually जो है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमें नेम भी गिवन है, कौन कर रहा है? जर्मनी का स्टेडियम। सो मेरे को ये जो एनवायरमेंटल बेनिफिट है उसका भी पता चल गया कि वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। डेफिनेटली 15 का आंसर है एफ। नाउ बिकॉज हमें अब सारे ही आंसर्स मिल गए हैं, सो नो नीड ऑफ रीडिंग जी पैराग्राफ बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। यू कैन मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। वैसे भी रीडिंग में बहुत ही टाइम शॉर्टेज होता है, तो सो ट्राई टू स्कीम इन स्कैम। अगर आपको आंसर मिल गए हैं तो इन्फॉर्मेशन क्या है उस पर नहीं जाओ, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज इट फॉर टूडेज वीडियो। होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। अगर कुछ भी अनक्लियर है then please do comment me on the comment section. I will reply you. Meet you in the next video. Thank you. Bye bye. Have a nice day.